Ladies and gentlemen, esteemed guests and dignitaries, it is with great pleasure and honor that we gather here today to welcome our distinguished chief guest, Dr. Hira Lal, an exemplary IAS officer renowned for his outstanding contributions to good governance, social work, workmanship, foresight, and teamwork, and unwavering dedication to public service. I will take few minutes of yours just to give a brief introduction about this sir. Dr. Hira Lal's journey from a small village in Uttar Pradesh to him becoming a celebrated IAS officer. His experiences and motivation are life lessons for all of us, not considering himself as an officer but an ordinary servant of the society. He has displayed a wonderful and exemplary track record of his workmanship, foresight, teamwork, and dedication. Sir is also an author, and it is a privilege for us to have him here. He uses his writing to draw attention towards good governance and social welfare. His work has become a platform to create awareness and spark conversations that lead to positive societal change. Sir has also served as DM of Banda and known as the Dynamic DM. And if the DM and other administrative officers of every district discharge their responsibility with the same sense of duty, then there is no reason why every village, every district, and the whole country will not be full of necessary facilities. Every Indian's life will be happy, and India will write a new story of progress and advancement. Dynamic DM is not only a motivational and a readable book, but it is also a powerful medium of social upliftment. Sir, we would like to tell you that we also ordered 15-20 copies of your books from the Flipkart, and soon they will be available at our library so that our students will also get the idea of how can the good governance can lead to a social work and a societal upliftment. Sir's vision is to inspire and empower individuals to create a world where everyone is able to develop capabilities and have access to the resources and opportunities needed to thrive. And his mission is to drive positive change by challenging the status quo, fostering collaboration and empowering individuals to become agents of social transformation. Sir believe in 11, एक और एक 11. Me plus myself is equal to unlimited power. That's what he believed. We humans often underestimate the immense power that lies within us. Our belief system is the source of this strength, and when we combine with the intensity of our consciousness, it translates into unimaginable power to bring about positive change, both within ourselves and in the society we live in. Explore and adopt these 11 transformative principles to become the change you always wanted to see. The walls of his office may be adorned with numerous awards and accolades, but it is his humility, compassion, and commitment to service that truly set him apart. Dr. Hira Lal stands as a beacon of hope and an embodiment of the values that define a true public servant. We are privileged to have you here, sir, today, and we eagerly anticipate the wisdom and inspiration he will share with us. Please join me in extending a warm and a heartfelt welcome to the leader whose life work exemplifies the highest standards of public service and dedication to the welfare of our community. Now, I would like to request Dr. Tarun Bansal to please come and present an verse and flower bouquet to Dr. Hira Lal sir and officially welcome him. Please, a huge round of applause for Dr. Hira Lal.
Now, I would request sir to please come on dais and address the audience. So, in this cold, no cold or cold, there is cold or no cold. I am asking you people, cold, quite cold. In this environment of too much cold, my topic of discussion will be hero of net zero. Hero of net zero. That is the topic. I have summarized your topic. A very good morning to the management, faculties, students, and particularly to Mukesh Sachanji and Dr. Bansal. I welcome you all who are before me. And I am told by Dr. Bansal that many people are watching us online. So we must be conscious about our behavior, talk and body language because we are under watch. When I got invitation on LinkedIn by Professor Bansal, a few days ago, he wanted that I should accept. Nearly 5 years ago or 6 years ago, I visited the home of Dr. Sachan to take his consultancy, to take his advice for my dream project Model Gaon. I am running project Model Gaon. This one I have given you. You all go through to know this Model Gaon project. And what is the purpose? To connect, to visit the Professor Mukesh through tourism, rural tourism, eco-tourism, natural tourism. I want to enhance the income of the village and the villagers. For that I visited him. Okay. So that is the background, and thereafter I got connected to Dr. Professor Bansal Sahab. I want to create a imaginative scene. You all support that. You all imagine that you are a hero of a picture. You imagine that you are a hero of a picture. You are going to make a film and you are a hero. The mission of that picture is to save the Mother Earth. The mission of the hero is to save the Mother Earth and save the planet. So a picture is not complete if there is no villain. Without villain, any picture is complete? No. If you are a hero, or your mission is to save the Mother Earth, to save the planet, who will be the villain? What is your answer? Anybody can answer? Anybody can answer? Who will be the villain? Humans are the villain. Yes? Humans. The climatic change will be the villain. Who will be the villain? Climatic change. Because the climatic change is devastating the Mother Earth, and not Mother Earth, everybody. Okay. And this climatic change is making the Earth hotter, increasing the temperature level and making the Earth unlivable.
then what we will do? Will you let it happen? Or will you take the responsibility individually and collectively to arrest the climatic change, to save the Mother Earth, to save the environment, and above all to save ourselves? So today we are going to talk about how the hospitality sector can be a part of the climatic change arrest strategy and what will be the action. We all know in our culture our guests are Atithi Devo Bhava. We all know. ये नहीं पता है कि अतिथि देवो भव यानी अतिथि क्या है, किसके तुल्य है? देवता के तुल्य है, भगवान के तुल्य है, जो भी एक अच्छा हम लोग उनको पोजीशन देते हैं। तो अगर हम लोग होटल सेक्टर में हैं, टूरिस्ट सेक्टर के पार्ट हैं, ये हम ही देखो यार, तो हमें जब अपने घर पे अतिथि को बुला रहे हैं, वो देव तुल्य है, वो हमारे लिए भगवान है, तो हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए जिससे कि उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। मैं यहाँ आने के पहले स्टडी कर रहा था कि ग्रीन हाउस गैसेज, मैं ये चीज और आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आप लोग मुझसे, मेरा ये क्वेश्चन है, ये सर्वे है ऑनलाइन, मतलब फेस टू फेस। मेरा ये मानना है, मैंने पूरे ग्लोबली इंडिया से कई जगहों पे बात किया कि क्लाइमेट, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, सेकेंड, एंड व्हाट इज द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। 3 पॉइंट्स। व्हाट इज क्लाइमेट, what is climate change, and what is the devastating effects of the climate change. How much percentage of Indian people is knowing all these three and having a good knowledge about all these three? How many percentage? आप लोगों का क्या मानना है, कितने परसेंट लोग इंडिया में क्लाइमेट चेंज क्या है जानते हैं, क्लाइमेट को जानते हैं, और क्लाइमेट चेंज से होने वाले भारी भरकम नुकसान के बारे में जानते हैं? कितने परसेंट लोग जानते हैं? आप लोग जरा बताइए मुझे। 10% लोग जानते हैं, ठीक है। और कोई आंसर? Just above zero. So 10 to 12%. 10 to 12. माय गेस्ट। और थोड़ा सा मेरी मदद करिए, यहाँ कोई स्टैटिस्टिक्स सर्वे नहीं करेगा ऐसे जो आपका गेस्ट हो। Just above zero. है? Just above zero. मेरा भी यही मानना है, और हमने काफी लोगों से मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि इंडिया में 90% लोग ना क्लाइमेट जानते हैं, ना क्लाइमेट चेंज जानते हैं, और क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। ये मेरा भी मानना, काफी लोग इस पर सहमति देख रहे हैं, यहाँ भी वही बात आ रही है। तो जो ये क्लाइमेट चेंज है, और उस क्लाइमेट चेंज के वजह से जो हमारा भारी भरकम नुकसान हो रहा है, और बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है, उससे हम कैसे बच पाएंगे जब हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी क्लाइमेट चेंज को पढ़ा। मैं एक लाइन में उसको बता भी दूँ। क्लाइमेट, व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज ए वेदर पैटर्न। Climate is a weather pattern measured over a long period, more than 30 years, in a particular area that is called, in a big area that is called climatic zone. In a big area, weather pattern observed in 30 years, that is the climate. And the changes happening in it, that is climate change. That changes is devastating our life, devastating us. That is the effect which we all must know. So it was very brief about the climate change and its effect.
In climatic change, what is the percentage of the harm of your this sector, tourism sector? So I was going through a paper. As per this paper, around 8%, 8% का भागीदारी है क्लाइमेटिक चेंज को करने में किसका? आप लोगों का, क्योंकि आप लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग इस 8% को कंट्रोल कर लें तो ये जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उससे आपका नुकसान, सबका नुकसान हो रहा है, उससे बचत हो जाएगा और आपकी भागीदारी भी आएगी। 8% कम नहीं होता। ठीक, अब बात आती है कि ये जो 8% की आपकी नुकसान में भागीदारी, अच्छा भागीदारी होती तो ठीक था। किसमें भागीदारी 8% की? ग्रीन हाउस गैस जनरेशन में। और ग्रीन हाउस गैस क्या है? CO2 है, मीथेन गैस है। मेनली यही दो को बताते हैं और छोटी मोटी और गैस है, बट मेजर CO2 और मीथेन है। तो क्या मतलब हुआ कि ये हम लोग क्या पैदा कर रहे हैं? CO2 पैदा कर रहे हैं, मीथेन पैदा कर रहे हैं, जो हमारी जिंदगी को, हमारी मदर अर्थ को बर्बाद कर रहा है। और उसमें हम लोगों का जो इस हाल में हम लोग बैठे हुए हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 8% है इसमें। अभी जैसा कि मैंने कहा कि हम आप सभी लोगों को, हमारा जो टॉपिक है हीरो ऑफ नेट जीरो, ये जो 8% है इसको नेट जीरो करना है। इसको घटा करके अगर हम जीरो कर दें तो हम हीरो बन जाएंगे और हमारा जो नुकसान में भागीदारी थी वो जीरो हो जाएगी। और यही आज इस टॉपिक का इसका मकसद है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अब इसको करेंगे कैसे और होटल सेक्टर में इसको कैसे करेंगे, जो जिससे आपका लेना देना है, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है। देखिए एक चीज है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक जल, जंगल और जमीन। जल वाटर, जंगल माने पौधा प्लांट, जंगल का मतलब पौधा प्लांट, और जमीन धरती। इन तीनों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है प्लास्टिक। क्या है वो? ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठा बताइए तब। देखिए बीच में लोग नहीं मानते, इसका मतलब ये लोग अनपढ़ हैं। क्या है? तो अनपढ़ ही कहूँगा। हाँ, दोनों हाथ उठाइए, थोड़ा गर्मी होगा आप लोगों को, दोनों हाथ उठा बताइए। हाँ, आप लोग को ठंड लग रही है। मैं आपको कह रहा हूँ हर आदमी ये पढ़िए। प्लास्टिक जल, जंगल, जमीन का, हर व्यक्ति का दुश्मन है। जब हम प्लास्टिक के बोतल से पानी पीते हैं, हम प्लास्टिक के बोतल से पानी पीते हैं तो हम केवल पानी नहीं पीते हैं। क्या पीते हैं? पानी प्लस प्लास्टिक। हमें लगता है ये भूल नहीं रहा है। अभी मैं शीशे के गिलास से पानी पी रहा था तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पानी पिया, हमने पानी भी पिया और शीशा भी पिया। उसमें शीशा गलता है माइक्रो लेवल में। मैं अभी परसों नरसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बच्चे, माँ के पेट में जो बच्चा पलता है उसके खून में प्लास्टिक पहुंच गया है, क्योंकि वो प्लास्टिक माँ के खून में है और माँ के खून से बच्चे के खून। प्लास्टिक को दुश्मन है। तो प्लास्टिक क्लाइमेटिक चेंज का सबसे बड़ा दानव है। क्या है क्लाइमेटिक चेंज? क्लाइमेटिक चेंज का सबसे बड़ा दोष है। अगर हम लोग प्लास्टिक फ्री लाइफ जीना शुरू कर दें और आप लोग अपने सेक्टर में प्लास्टिक फ्री होटल शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो? कि हमारे होटल में हम प्लास्टिक की कोई चीज यूज नहीं करेंगे। तो आप कहोगे साहब हमारा होटल तो चलेगा नहीं, ये क्या आप बताने आए हैं? आप हमारे कैसे चीफ गेस्ट हैं, हमारा नुकसान करने आए हैं? नहीं, आज के डेट में प्लास्टिक के बारे में लोगों की ये समझ में आ गया है। तो अब क्या करना है? हमें प्लास्टिक रहित आदमी चाहिए, हमें प्लास्टिक रहित घर चाहिए, हमें प्लास्टिक रहित होटल चाहिए। हर चीज प्लास्टिक रहित होगी और जिस होटल में प्लास्टिक रहित होगा उसकी मार्केटिंग करेंगे
तो आपका रेट भी बढ़ेगा, रूम रेंट और एवरीथिंग का, और आपके क्लाइंटल भी बढ़ेगी, स्टे ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी। आप इस चीज को मार्केट करिए कि हमारा होटल प्लास्टिक फ्री है। तो आपको पहला काम क्या करना है, जो आज का टॉपिक है, प्लास्टिक फ्री होटल। कोई चीज, नो गिलास, नथिंग, एवरीथिंग, मिट्टी, बर्तन, पीतल वाला, स्टील वाला, बट नथिंग। ये मेरी बात से आप सहमत है कि नहीं सहमत है? तो ये जो नेट जीरो को आपको हीरो बनना है, वो हीरो बनने के लिए प्लास्टिक फ्री होना पड़ेगा, प्लास्टिक फ्री होटल बनाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज फूड होता है क्या, ये फूड बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो क्या होता है, जो हम खाना बनाते हैं तो बच जाता है, और अगले दिन सुबह खिलाओगे किसी गेस्ट को, तो फिर आपका होटल दौड़ता होगा तो रुक जाएगा, और रुका होगा तो बैठ जाएगा। बासी खाना होटल में नहीं चलता। ठीक है। अब जो आपका फूड है वो बचे ना, इसको मिनिमाइज करिए, तो जीरो तो होगा नहीं। तो जो आपका फूड है बच गया, आपके प्रयास के बाद भी उसको क्या करिए, ऐसा मैनेज करिए कि जो बचा हुआ फूड है वो किसी डेयरी वाले से कांटेक्ट कर दीजिए, किसी एनिमल का कोई स्पॉट हो वहां कर दीजिए, जानवरों को फीड करा दीजिए, बर्ड को फीड करा दीजिए। ठीक। और इसके अलावा अगर कुछ बचता है तो फूड से वर्मी कंपोस्ट खाद बनेगा, वर्मी कंपोस्ट खाद बना लीजिए, वेरी इजी, माली सब जानता है, और उसे अपने गार्डन में उसको यूज करिए। तो फूड वेस्ट को हमें जीरो करना है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, कलकत्ता में बांधा था, जेल में, जेल को नेचुरल बनाने के लिए हम लोगों ने घोंसले टंगवाए जगह जगह पे, और जो खाना कैदियों के लिए बनता है, जो बचता था उसी को पहले फेंक देते थे, उसी को उसमें डाला, बहुत सारी चिड़िया धीरे धीरे पता लगाने लगे, और चाह चाह के वो पूरा बगीचा जैसा माहौल बन गया जेल का। तो वो जो बचे फूड से हमने ये काम किया, तो ये काम तो वेस्टेज नहीं होगा और ये ठीक होगा। तो फूड वेस्टेज को जीरो करना है, अदरवाइज इधर उधर सड़ेगा, दिक्कत होगी, वो CO2 जनरेट करेगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है, ये मैं जो पॉइंट पे बात कर रहा हूं, आपको हीरो ऑफ नेट जीरो के ही मुद्दे पे बात कर रहा हूं। पहला मुद्दा मैंने उठाया प्लास्टिक रहित। टाइम बहुत मैं नहीं लेना चाहता, नहीं, मेरे पास बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे मेरे झोले में, मैं जादूगर हूं इस काम का, बहुत काम किया है। ठीक है। मैंने प्लास्टिक फ्री बांधा बनाया कलेक्टर, प्लास्टिक फ्री 2018 में। मैंने जो किताब लिखी है डायनेमिक डीएम की, उसमें एक चैप्टर है, पढ़िएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, अमेजन में, हिंदी में, अंग्रेजी, गुजराती मेरी किताब है, और ये किताब है, ये देखिए। और इसमें 12वां चैप्टर पर्यटन को लेके है। मैंने बांधा को पर्यटन के दृष्टि से डेवलप किया। व्हाट वाज माय मोटो? टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बांधा पीपल। क्यों, मैं इंडस्ट्री नहीं लगा सकता था, लेकिन वहाँ इतने अच्छे अच्छे स्पॉट थे, कहीं टीला, कहीं ये, कहीं वो, जो भी मुझे लगा, और उसका फायदा हुआ। तो ये चैप्टर मैंने हाउ टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द पब्लिक बाई इनहांसिंग द टूरिस्ट सेक्टर। इस तरह चैप्टर ये भी है, अगर आप पढ़ोगे तो। मेरी दूसरा बात है वाटर, पानी। पानी कोई ना बना सकता ना बिगाड़ सकता। ठीक है। पानी बनाने की कोई फैक्ट्री बताएगा कहाँ बनता है? कोई पानी H2O का जो फार्मूला है, और ये पानी ऊपर वाला हमें 4 महीना बरसात में देता है, तो बरसात 12 महीना कर दिया क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। तो हम जितना साल में पानी पीते हैं, उतना जितना पानी कंज्यूम करते हैं, उतना पानी हमें बरसाती सीजन में बचाना चाहिए और रखना चाहिए। ये होटल पे कैसे एप्लीकेबल है? आप कैलकुलेट करिए कि एक साल में कितना पानी आप कंज्यूम करेंगे गार्डन में पीने के लिए, सफाई, टोटल कैलकुलेट करिए, उतना पानी आप बचाइए बरसात जब हो। तो क्या करना है, होटल कैंपस का आपको रेन हार्वेस्टिंग वाटर का फार्मूला लगाना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है।
जितना कैंपस का पानी है 2 गड्ढा खोद दो, सब धरती में चला जाएगा। बहुत सिंपल है। तो आप जितना पानी कंज्यूम करेंगे उतना पानी आपको बचाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, पानी को रीयूज करना चाहिए। बहुत सारे पानी का यूज ऐसा होता है कि उनको थोड़ा सा ट्रीट करके उसको गार्डन में यूज कर ले, कहीं और यूज हो सकता है। तीसरी बात, हमें पानी के यूज को इफिशिएंटली यूज करना है। जैसे इसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, वो हमें करना चाहिए। आजकल देखते नहीं, पहले पानी ऐसे गिरता था, वो उसमें झाग लेके गिरता है। वो क्या है, वो पानी के यूज को कम पानी में ज्यादा काम है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी को यूज करके कम पानी में कैसे हम काम कर रहे हैं वो, और पानी को बचाना, ये क्लाइमेटिक चेंज को रोकना है। देखिए, जलवायु परिवर्तन को मैं बड़े देहाती तरीके से समझाता हूँ। जलवायु परिवर्तन, जल में परिवर्तन और वायु में परिवर्तन, ये तो जलवायु परिवर्तन है। इसको कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज। तो जल में क्या परिवर्तन हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है, डे बाय डे पानी नीचे जा रहा है, और इस पानी को ऊपर लाना है और इसे नीचे जाने से रोकना है। ये कैसे संभव है, जब हम बरसात में पानी को कंजर्व करेंगे, धरती में ले जाएंगे। पानी के रहने का घर क्या है, मिट्टी, कुआं, तालाब, नदी। तो हमें पानी बचाना चाहिए। तो हमने पहले बात किया प्लास्टिक, दूसरी बात किया फूड जीरो वेस्ट, और तीसरी बात की हमने पानी वेस्ट। ठीक है। अब बात आती है एनर्जी की। होटल सेक्टर में हमें एनर्जी की जरूरत है। तो जब एनर्जी हम कोल से पैदा करते हैं तो वो CO2 निकलता है, और वही क्लाइमेटिक चेंज करता है। तो अगर हमें CO2 घटाना है तो हमें कोयला वाला बिजली नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें सोलराइज होटल बनाना है। क्या बनाना है, पूरा होटल सोलर का है। आप जो है कमरों में दिन में LED का लैंप रखिए, जैसे पहले जमाने में लालटेन का होता था, दिन में चार्ज कर लीजिए, हर कमरे में रख दीजिए, आपका बिजली सोलराइज हो गया। और आज के डेट में इधर काफी सोलराइज, हर घर पे सोलर का वो पैनल लगा है, और सोलराइज का रेशियो, सोलर एनर्जी का रेशियो बढ़ रहा है। तो आपका होटल सोलराइज होना चाहिए। ये बड़े आसानी से हो सकता है, और ये बहुत चीप साबित हो रहा है। 2 रुपया से नीचे रेट आ गया है सोलर का। मैं नेडा में सचिव था जो ये सोलर एनर्जी बनाता है, तो मेरे जमाने में 12 रुपया था, आज 2 रुपया है, ये रेट हो गया है। दूसरी बात यह है, एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जाए, LED की लाइट लगाई जाए। आजकल होटलों में जैसे आप निकलते हैं अपने आप लाइट बंद हो जाता है, मैक्सिमम होटल में है। जब जाएंगे तो आप एक कुंजी ऐसे डालते हैं, नहीं डालते हैं ऐसे, और जैसे ऐसे डालते हैं जल जाता है। और जब आप निकलेंगे तो कुंजी लेकर अपने आप लाइट, क्या है, इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी को हमें फॉसिल फ्यूल एनर्जी से शिफ्ट करना है, किधर, सोलर पे। अभी जो COP28 हुआ उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ कि वी विल से नो टू फॉसिल फ्यूल। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है, जो आज आपका टॉपिक है, कि आप ये सब करोगे तो लोगों के दिमाग में यह है कि साहब ये सब हम करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैंने जितनी बातें बताई हैं इसमें पैसा नहीं लगेगा, बल्कि आपका पैसा बचेगा। क्या, आपका पैसा बचेगा और कमाई बढ़ेगी। आज के डेट में अगर आप किसी से कह दो, आप किसी से कह दो कि मेरा ग्रीन होटल है, या जो है हमारा सस्टेनेबल होटल है, और उसमें हम सोलराइज करते हैं, प्लास्टिक फ्री है, ये जो 4-5 इंडिकेटर आपने बताए हमने आपको, इसको करके मार्केटिंग करिए, आपकी ऑक्यूपेंसी डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि इस समय जो पढ़ा लिखा तबका है, जो होटल में जाता है, होटल में बैठक करता है और होटल में जाता है, वो अब इको फ्रेंडली ही पसंद कर रहा है होटल। तो अब आपकी ये मजबूरी है कि आप इको फ्रेंडली होटल को बनाएं। मैं आपको बताऊं, गोमती नगर में एक मेरे मित्र हैं, उनका एक छोटा सा होटल है 300 स्क्वायर फीट में 25 कमरे का।
तो वो सही पथ से सटा हुआ है बाईपास। हम वहाँ बैठे, हमने कहा यार वो सही पथ के सटा हुआ, इसमें सब पौधे लगवा दो हरा हरा। अब वो पौधे जब वो हरा हरा लगा दिए, वो 100 रुपया पौधा लगा दिए, 5-6 साल में वो सब हरा हरा, वो इतना अच्छा ऑक्सीजन देता, उनके होटल का रौनक ही बदल गया। तो हमें होटल में इतने पौधे लगाने चाहिए जितना हम लगा सकें, जमीन पे लगाएं, और नहीं तो वो बोनसाई क्या बोलते हैं जो पॉट में लगाते हैं, क्या बड़े बड़े पौधे। तो हमें ग्रीनरी पैदा करना है, और रेन हार्वेस्टिंग करना है, प्लास्टिक फ्री करना है, फूड वेस्टेज को जीरो करना है। अगर हम ये सब चीजें कर लें, एनर्जी को सोलराइज कर दें, ये 5-6 चीजें कर लें, तो आपका होटल सस्टेनेबल होटल होगा। और आपका ये जो 8% का आपका ये जो पाप है ये खत्म हो जाएगा। आप ये 8% के जो पाप में भागीदारी है आपकी, ये खत्म हो जाएगा, और हम लोग बहुत कुछ अच्छा काम करने लगेंगे। ये बात हो रही है कार्बन फुटप्रिंट, ये एक वर्ड है, क्या है कोई बताएगा? कार्बन फुटप्रिंट वर्ड क्या है? तो वो वर्ड है कार्बन फुटप्रिंट। इसमें कई टर्मिनोलॉजी, ऐसे कई वर्ड आ रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज में। मैंने एक दिन पढ़ा, काफी कई है, कार्बन फुटप्रिंट, क्लाइमेट पॉजिटिव, और 20-22 वर्ड बड़े पिकुलियर हैं। तो ये कार्बन फुटप्रिंट बताएंगे, आप बताओ मैडम, पता है? तुम बताओ। हाँ बोल, हम तुम्हें हड़काएंगे थोड़ी, हम टीचर थोड़ी हैं। हाँ बताओ तुम, कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कोई बताओ। सर कार्बन फुटप्रिंट्स हम ये कहेंगे, जैसे कार्बन फुटप्रिंट 3 लोग जनरेट करते हैं। एक इंसान हो गया, एक इंडिविजुअल, एक कंपनी हो गई, ठीक है, और एक मतलब एक इंस्टीट्यूशन हो गया। कार्बन फुटप्रिंट जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, हम कोई भी एमिशंस, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है, जिससे नुकसान पहुंचता है। जैसे कंपनी को अगर कोई एनर्जी चलाना है तो कैसे? मैंने शुरू में कहा ना, 90% लोग क्लाइमेट चेंज के न टर्मिनोलॉजी से परिचित हैं, न उसके नुकसान से परिचित हैं, और ये हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक, कार्बन फुटप्रिंट का देहाती भाषा में, समझाने वाले भाषा में, कार्बन जहां जहां जिस जिस स्रोत से पैदा कर रहा है उसकी मैपिंग कर लो। क्या? और जब आप मैपिंग कर लोगे तो वो जब पैदा हो रहा है तो आगे पीछे चलेगा, उसी को फुटप्रिंट की कहां से पैदा हो रहा है, उसके प्रिंट कहाँ है फूड के। कार्बन फुटप्रिंट सिंपल भाषा में आपका होटल है, तो आप अगर उसमें जो है गाड़ी यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्ट का, तो CO2 निकल रहा है धुआं में, वो एक सोर्स हुआ। ठीक है, आप सोलराइज एनर्जी नहीं यूज कर रहे हो। इस तरह से कार्बन फुटप्रिंट के जितने भी जनरेट करने के रिसोर्सेज हैं, सबकी मैपिंग करना, और फिर उसको ऑफसेट करना, जितना CO2 निकाल ले उतना ऑक्सीजन पैदा करवा दो, या तो उसे घटा दो, या तो उतना ऑक्सीजन पैदा करा के ऑफसेट करा दो, तब वो न्यूट्रल हो। थैंक यू, अच्छा, आपने अच्छी जानकारी है। अब मैं आप लोगों को कुछ देने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? देने आया हूँ। देखिए, पहले जब हम लोग पढ़ते थे या वो था, तो आपने पढ़ाई कर लिया तो आपको नौकरी मिल जाती थी, और उसके बाद आप बहुत बढ़िया जिंदगी कट जाती थी। एक नॉलेज का डोमेन से काम चलता था। लेकिन ये जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम है कि जब हम थियरी पढ़ेंगे तो थियरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो थियरी नहीं पढ़ेंगे। ये जबकि दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। तो मेरा आप लोगों को एक आइडिया ये देना है, मैं हर जगह कहता हूँ कि आप लोग ये जो सस्टेनेबल का टॉपिक है इसको करिए। जब आप डिग्री करिए, या जब आप कहीं नौकरी में हैं, जैसे डिग्री के बाद कहीं नौकरी कर रहे हैं किसी होटल में, जैसा अभी दिखाए बहुत सारे होटलों, तो आप इन सब फार्मूले को पढ़िए, अपने इस इनोवेटिव आइडिया को अपने मैनेजमेंट के सामने रखिए, और उनसे बताइए साहब इससे ऐसे आसानी से हो जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, इससे ये मार्केट बढ़ जाएगी और आपका फायदा होगा। तो होटल का मालिक आपकी बात को मानेगा, और आप एक नया प्रयोग करेंगे। जो बच्चे हैं यहाँ, जो पढ़ रहे हैं, जो मेरी बात यहाँ सुन रहे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी को जब पढ़ें तो किसी होटल में
ये प्रयोग करें। कैसे करेंगे? 4-5 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए आप लोग, और किसी होटल, मैक्सिमम होटल के लोग यहीं के पढ़े लिखे, उनसे बात करिए, और उस होटल में को क्लाइमेटिक सस्टेनेबल होटल बनाने के लिए आप एक इंटर्नशिप टाइप का करिए। तो उससे क्या होगा, आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो है ही है, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, और ये आपको बहुत अच्छा पे करेगा। अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी में काफी इंक्लूड कर दिया गया, नहीं कर दिया गया, वही बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं ये जो मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूँ, इसमें जो है रूरल टूरिज्म पे मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है। क्या है? कोई मुझे बताएगा कि टूरिज्म को लेकर के पॉलिसी के रिस्पेक्ट में सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है पॉलिसी बनाने? हाँ, केरला और गुजरात और गोवा। मेरी जानकारी के हिसाब से मैं महाराष्ट्र है, वहाँ एक साहब हैं, उनका नंबर स्लिप कर रहा है, वो अपने को टूरिज्म का वो जन्मदाता बोलते हैं, वो ट्रेनिंग भी देते हैं, और उन्हें हर फोरम पे इंडिया में बुलाया जाता है, और वो मेरे टच में है। मैंने मॉडल गांव में उनका वेबिनार कराया था, लखनऊ आए थे जब यहाँ टूरिज्म का सेंट्रल होटल में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, मेरे मॉडल गांव भी आए थे। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए, टूरिज्म के लिहाज से आप लोग मॉडल गांव में कोई इंटर्नशिप करना चाहते हो, मेरे पास बहुत सारे गांव हैं, गांव का पूरा हमारे पास डेटा है, कंट्रोल है, प्रधान है, पूरी ब्यूरोक्रेसी है। आप लोग उस गांव को हम लोग एक सस्टेनेबल गांव, क्लाइमेट पॉजिटिव गांव में कैसे कन्वर्ट करें, आप मुझसे अटैच करिए। ठीक है, मैं अपना गांव इलाज करूंगा, आप लोग वहाँ इंटर्नशिप करिए, मैं आपको अपने पैड का सर्टिफिकेट दूंगा इंटर्नशिप का, आपको मॉडल गांव के पैड पे दूंगा, और आपकी एक प्रैक्टिकल लर्निंग हो, और ये करना ही चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ क्लास में थियरी पढ़ रहे हैं, तो आप जिंदगी में वो सफलता नहीं प्राप्त करेंगे जो कि विद प्रैक्टिकल वाले में करेंगे। तो मेरा मैं ये आप लोगों से ऑफर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग मॉडल गांव में इसी टॉपिक पे या टूरिज्म से कैसे इनकम बढ़ाई जाए, इस पर कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जैसे 30 के बच्चे हमारे मॉडल गांव में काफी लोगों ने वो किया, 30 मामले वालों ने इंटर्नशिप, उनका टॉपिक दूसरा है। तो मेरा ये दूसरा गिविंग पॉइंट है। तीसरा मैं ये चाहता हूं कि इस देश की जो रीढ़ है, आज भी लोग कहते हैं कि इंडिया में कितने परसेंट लोग रहते हैं गांव में, कहते हैं 60%। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज भी इंडिया में 90% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, या तो गांव में रहते हैं या गांव के बिना वो रह नहीं सकते, या गांव पे डिपेंड नहीं करते। कैसे बताइए? यहाँ के पूरे लखनऊ की सब्जी कहाँ से आती है? अगल बगल के गांव से। दूध कहाँ से आता? अगल बगल के गांव से। यहाँ लखनऊ की हवा, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? अगल बगल के गांव में जो पेड़ है वहां से। तो हम गांव पे डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है? और इस देश का जो सबसे बड़ा आदमी होता है, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, तो फार्म हाउस खरीदता है। क्या खरीदता है? फार्म हाउस। हम लोग पहले उसे किसान करते थे, वो अंग्रेज हो गया। हम लोग नाटक में तो विश्वास ज्यादा, दिखावा, शोबाजी, नौटंकी में हम लोगों का बहुत अच्छा PhD है हम, तो उसको कह दिया फार्म हाउस। क्या कह दिया? फार्म हाउस। फार्म हाउस माने धनी और किसान माने गरीब। मैं दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आप कुल्हड़ में चाय पियो, गुड़ वाला चाय पियो, कहेंगे ये गरीब है। क्या कहेंगे? गरीब है। कुल्हड़ में चाय पी रहा है, वो गुड़ वाला चाय पी रहा है, गरीब है, गरीब। और अगर आप गोंद चाइना वाले कप में पियो और चीनी की पियो, कहेंगे धनी है। जबकि वो क्या है? गोंद माने हड्डी। चाइना की हड्डी से बना हुआ कप में केमिकल चीनी वाले से पी करके और कह रहे हो आप धनी है। मैं इसको समझाने के लिए दिस वे आई यूज। तो ये जो हम लोगों ने दिखावे में, शोबाजी में, होटल इंडस्ट्री भी इसमें फंसी हुई है। लेकिन जो मैंने महसूस किया इधर 5-6 साल में, कि होटल इंडस्ट्री में जो ज्यादा नेचुरल, जो ज्यादा, अब लोग शहर के इंडस्ट्री में जाना पसंद नहीं करता है, वो गांव में कहीं नेचुरल। मैं आपको बताऊं, बादा में एक प्रेम सिंह है, तो उनके यहाँ 2-4 अंग्रेज रोज आकर के उनके ऐसे देहाती वाती टाइप का गाय, गोबर, हल वल काफी बनाए हैं।
तो मैं कलेक्टर था, तो अंग्रेज लाते थे मुझसे मिलवाने की, चलो अपने कलेक्टर से मिलवाएं। तो लाते थे एक दिन, तो एक मजाक में मैं बताऊँ मजाक क्या किए, सुनना चाहेंगे? कहीं वो एक फोटो लाए, वो गोबर निकाल रहा था, तो हमने कहा ये गोबर इनसे क्यों निकलवाते हो, झरना होना में वो बर्निंग कंपोस्ट में गोबर वोबर, कहीं पहले इन्होंने हमसे गोबर कढ़वाया है, अब हम इनसे गोबर कढ़वा रहे हैं। इसी तरह से एक इको टू एक गांव है यहाँ पे सीतापुर में, वो मुस्लिम है, यहीं रहते हैं, उनके गांव में गया, उन्होंने अपने गांव को सब सजा दिया, उनके यहाँ भी आते हैं। ऐसे जब मैंने मॉडल गांव में इस टूरिज्म पे स्टडी किया, ऐसे पूरे प्रदेश में कम से कम 20-25 लोग मुझे मिले जो स्वयं से, उनका विदेशों से सीधा कनेक्ट है, उनके यहाँ लोग आते हैं और खूब रुक रहे हैं। अब लोगों का रुझान शहरी CO2 वाले माहौल में, नॉन ग्रीनरी वाले माहौल से ऊब चुके हैं। दे वांट टू सी द नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल एयर, नेचुरल फूड। तो अब जमाना आ गया है रूरल क्या, रूरल टूरिज्म का। तो इस पर आप काम करिए, मेरा ये कहना है। 5 साल पहले जब टूरिज्म में पॉलिसी चेंज हो रही थी, तो मैंने ही रूरल टूरिज्म को एक हेडिंग डलवाया था। अब तो रूरल टूरिज्म पे बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। तो रूरल टूरिज्म में भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि सब लोग क्लाइमेटिक चेंज पे पढ़िए। क्या है, मैं क्लाइमेटिक चेंज पे बहुत आजकल पढ़ता हूँ, और मैं सबसे बड़ा क्लाइमेटिक चेंज एक्शन लीडर हूँ। अब आप कहोगे साहब अपनी आप तारीफ कर रहे हो। मैं बादा में था तो मैंने पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर वाटर टेबल पब्लिक पार्टिसिपेशन से बढ़ा दिया। तो हमने क्लाइमेटिक चेंज को रोका कि नहीं रोका? हमने वहाँ लोग पेड़ लगाओ अभियान चलाते हैं, हमने कहा ये पेड़ लगाते हो मर जाता, तो हमने पेड़ जियाओ अभियान चलाया। क्या चलाया? पेड़ जियाओ। और हमने, हमारे दिमाग में एक बात थी कि जिस तरह से घर बनाते हैं रहने के लिए, लाइट लगवाते हैं लाइट के लिए, तो ये जो ऑक्सीजन 24 घंटा लेते हैं, इसका इंतजाम क्यों नहीं आदमी करता? तो हमने वहाँ एक ऑक्सीजन पार्क बनाया। क्या बनाया? और उस ऑक्सीजन पार्क में हमने एक ऑक्सीजन बार बनाया। क्या बनाया? और उसकी फिलॉसफी यही थी, एक बहुत बड़े एरिया में पौधा, ऐसे पौधे लगवाए जो ऑक्सीजन देते थे। वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाया और हमने कहा यहाँ से जो ऑक्सीजन होगा पूरे बांदा शहर को यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करूँगा 10,000 से। तो ऑक्सीजन पार्क बनाया, ऑक्सीजन बार बनाया, पानी उठाया और प्लास्टिक फ्री बांदा बनाया। यही तो क्लाइमेटिक चेंज रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है। That's why I used to say कि मैं क्लाइमेटिक एक्शन लीडर हूँ और मैं हर सप्ताह हर जगह जाता हूँ। ये जो 90% लोग नहीं जानते हैं, इनको समझाना है, इनको जगाना है कि ये पढ़ना शुरू करें और कुल्हड़ में चाय पियो। किसमें? कुल्हड़ में, गुड़ वाला चाय पियो। क्या मिट्टी के बर्तन में खाओ, क्या टेस्ट आता है। ये हड्डी वड्डी वाले बर्तन को छोड़ दो, शक्कर छोड़ दो, गुड़ पे आओ, नेचर के नजदीक जाओ। और आपके सेक्टर की यही सबसे बड़ी देन है जिसको ये कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक बात और कहूंगा जो कि मैं बादा में था। मैं अपनी लाइफ में एक चीज को मैंने IAS अक्सर प्रयोग किया, जैसे महात्मा गांधी नहीं प्रयोग करते थे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऐसे मैं भी हर जगह एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जहां पोस्टिंग हो गई कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो मुझे करना ही करना। तो मैं बादा में एक प्रयोग किया, एक वर्ल्ड फूड डे होता है, होता नहीं होता है? वर्ल्ड फूड डे कुछ होता है नहीं होता है? 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर सर होता है ना जी। तो वर्ल्ड फूड डे था या कुछ ऐसा फूड से रिलेटेड था। तो हम जब बादा, तो हमारा ये मानना है स्थानीय भाषा, स्थानीय, नोट करिए सब लोग अपनी जिंदगी में, नौटंकी से दूर जाओ। स्थानीय भाषा, भोजन, वेशभूषा, भोजन, वेशभूषा, भाषा, इसको जिसने अपनाया वो बड़ी ऊंचाई पे जाता है। किसको? अब बैठे हो गांव में और बोल रहे हो टिपी टिपी अंग्रेजी। क्या? स्थानीय जैसा देश वैसा वेश, स्थानीय भाषा और स्थानीय वेशभूषा। अब गांव में जा रहे हो, वहां सब
धोती कुर्ता वाले चाचा काऊ ताता आपके हैं और आप जींस उन्स अपना टाई वाई बांध के अंग्रेज बन रहे हो, you will not mix up in the society and you will not drive the pleasure from the society. You are losing your pleasure because of your attire. Do you agree with me or not? You cannot connect yourself. और जब तक कनेक्ट नहीं करोगे, वायर नहीं बनेगा, तब तक बिजली नहीं आएगी। तो भाषा, भोजन और स्थानीय भोजन का जो महत्व है, हर गांव का, हर जिले का स्थानीय भोजन है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। मैंने मादा में जितने भी इवेंट किए, वहां का स्थानीय भोजन का स्टॉल लगवाया और मेरा एक्सपेरिमेंट ये रहा कि उसकी सबसे ज्यादा बिक्री हुई। ये अड्डा बड्डा और अड़ा बड़ा, ये पुदीना, ये कोई नहीं गया। वहां का जो लोकल 5-6 तरह का, उसकी इतनी बिक्री हुई, फिर मैंने दुकान खुलवाई और हम जो है 2-4 बार खाने गए, फिर प्रचार हो गया, उसकी दुकान चल गई। तो स्थानीय भाषा, स्थानीय वेशभूषा और भोजन, आप इसमें फंसे हैं, भोजन वाले में। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे वो ओटीओपी नहीं चला है, ऐसे जो है आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड प्रोडक्ट चला दो। क्या चला दो? बनाओ एक पॉलिसी, लेके आओ गवर्नमेंट में, हम आपकी तरफदारी करेंगे। हम आपके टूरिज्म, हर जिले का जो सबसे बढ़िया भोजन है उसकी मैपिंग करिए। 1 ओटीओपी तो समझ रहे हो ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 फूड, ये नया आइडिया भी अचानक आ गया है। हाँ, इसकी मैपिंग करिए, एक अपना प्रोजेक्ट बनाइए और लेके जाइए गवर्नमेंट में, लिखिए भारत सरकार यहाँ, क्योंकि ओटीओपी के तर्क का हवाला दीजिए, ये लॉन्च हो जाएगा। मैं आपकी मदद करूंगा, जहां कहोगे उनसे मदद करूंगा, जिससे कहोगे उनसे मिलवाऊंगा और पैरवी करूंगा। तो इसके पीछे मकसद मेरा सस्टेनेबिलिटी है। हम लोगों ने नक्शेबाजी में, दिखावे में, शोबाजी में अपने उस एरी पैंट धोती को छोड़ दिया जो स्वस्थ रखता था। हमने ये गलत नकल कर लिए, जो कि हमें एयर मिली। हमें घूम के वहीं जाना है, स्थानीय फूड को प्रमोट करना है। तो मेरा ये अनुरोध है, और वो सस्टेनेबल है। अभी मैं सैटरडे संडे को मैं किसी न किसी गांव में रहता हूँ, तो अभी मैं बाराबंकी के एक गांव में गया था, तो उसका सब्जी बहुत बढ़िया पैदा करते हैं। तो उन्होंने कहा इस पे जो है हमारा केमिकल खत्म हो गया। तो हमने कहा कैसे किया? वो क्या करते हैं, केमिकल में जो कीड़े से मारने के लिए जो केमिकल डालते हैं, उनको उन्होंने खत्म किया है। उन्होंने कुछ रंग बिरंगे वो लगाए हैं, पन्नी टाइप का, और उस पर गोल चिपका दिए हैं, वो कीड़ा आता है और चिपक जाता है। ऐसे कई तिक्रम किए, सब नेचुरल है, उनको कीड़ा मर गया, वो नहीं डालना पड़ता, सब देसी तरीका है और सस्ता है और केमिकल फ्री हो गई उनकी सब्जी। तो इस दुनिया में, गांव देहात में हर जगह अच्छे लोग हैं, करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध यह है कि मैं जहां जाता हूं एक बात कहता हूं कि हम सबको रिश्तेदार बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? तो आप लोग मेरे रिश्तेदार बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे, और बनोगे तो आपका फायदा हो या ना हो, मेरा जरूर होगा। क्या? मैं अपने फायदे में बात करता हूँ। तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया है। यू कैन फॉलो मी एंड इफ यू विल सीक माय एनी हेल्प, एनी असिस्टेंस, एनी एडवाइस, आई विल प्रोवाइड दैट। और लास्ट में 1 मिनट में अपनी बात कहूँगा। मैं कहता हूँ मैं 3 IAS के बराबर हूँ। कितने IAS के बराबर हूँ? और मैं आजकल, ये मेरा थीम है, मेरा एक टॉकिंग पॉइंट है कि हर व्यक्ति को 3 in 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 in 1। अब 1 in 1 से काम नहीं चलेगा। पहले जमाने में इंजीनियर हो गए, जिंदगी कट गई, डॉक्टर हो गए, जिंदगी कट गई। वैसा नहीं है, आपको 3 डोमेन का नॉलेज। तो मैं ये क्यों कहता हूँ? बाई बिल्डिंग योर कैपेसिटी यू कैन इनहांस योर कैपेसिटी 3 in 1। जैसे मैं एक IAS से अपना, मैं 3 in 1 हूँ, मैंने अपनी कैपेसिटी बिल्ड किया है। एक IAS से मैं नौकरी करता हूँ, दूसरे IAS से मैं पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ? मैंने PhD की, इस समय डीलिट कर रहा हूँ। सस्टेनेबल कोप जब चल रहा, मैंने 12 आर्टिकल लिखी है, बड़े अच्छे जगह छपी है। ये जब अभी सऊदी अरबिया में कोप 28 चल रहा, मेरी 12 आर्टिकल छपी। तो मैं दूसरे IAS से पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, किताब लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ। और तीसरे IAS से, जो मेरी तीसरी कैपेसिटी IAS की, उसमें ये जनसेवा करता हूँ। जैसे ये लेक्चर लेने आना, लोगों को जगाना, मॉडल गांव पे काम करना,
लोगों को सेवा करना, उससे मैं सोशल इंटरप्रेन्योर वाला काम करता हूँ। हर व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी 3 गुना करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये नहीं कि ये डॉक्टर मुकेश सचान नहीं करेंगे, इनको भी जरूरत है। और ये बुढ़े लोगों को और जरूरत है जो हमारे एज में, जैसे हम लोग बुढ़ा एज में हैं। ये नहीं कहा हमारी तो कट गई और क्या होगा, अब हम काहे 3 in 1 हो, हमारा तो 1 in 1 ना। सबको 3 in 1 में, इसके लिए लोगों को मोटिवेट करता हूँ और अपना ये उदाहरण देकर लोगों के दिमाग में एक आइडिया भरता हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग एक वर्ड है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मैंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है 3 in 1। तो मुझे अच्छा लगा। और बंसल साहब आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, सचान साहब आपका धन्यवाद कि मुझे आपने यहाँ बुलाया। लेकिन मेरी एक शिकायत है, वो शिकायत ये कि आपका इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है और इसकी इतनी रिलेवेंसी है समाज के लिए, लेकिन इसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। अब मेरी बात को हो सकता है अच्छी ना लग रहा, क्यों? आप कोई थियरेटिकल ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिकल है। आज मुझे आपने, क्यों मैं प्रैक्टिकल हूँ तभी आपने मुझे पकड़ा। मैं थियरी में उतना विश्वास नहीं जितना प्रैक्टिकल में काम करता हूँ। तो आपके इस इंस्टीट्यूट की विजिबिलिटी बढ़नी चाहिए। ये बढ़ेगी कैसे? डीएम के साथ आपके बच्चे इंटर्नशिप करें, कुछ काम करें, जिला परिषद इस डिफरेंट डिपार्टमेंट में कुछ आप काम करिए, कुछ मतलब कुछ फील्ड में जाइए, प्रैक्टिकल करिए, लोगों को फायदा पहुंचाइए, ऑटोमेटिक विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो मेरा एक अनुरोध यह है इस इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से कि आपको अपने इस विजिबिलिटी को बढ़ा करके आपकी जो ये खुशबू है ना, वो सब तक पहुंचनी चाहिए और सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। इसमें एक स्कोप, एक गुंजाइश है जो मैंने महसूस किया। ठीक है, तो शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों ने इस ठंडी में मुझे सुना। और मैं पिछले 10 साल से प्लास्टिक फ्री जी रहा हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं खूब अच्छा इनर्जेटिक लाइफ जीता हूँ। मेरी जिंदगी में पिछले 10 साल से प्लास्टिक नहीं है। मैं गुड़ वाला चाय पीता हूँ, मैं सस्टेनेबल आदमी हूँ, मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जैसा कि आज का ये टॉपिक है कि अपनी जिंदगी को जहाँ जिस होटल में नौकरी करें उसे सस्टेनेबल होटल बनाइए। और ये जो मेरी किताब है डायनेमिक डीएम, देखिए आप लोग गूगल पे ये उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे, डायनेमिक डीएम। इसको पढ़िएगा और मुझे अपना रिव्यू दीजिएगा। अब आप सोचो मैं आपके बिरादरी का हूँ कि नहीं हूँ? मैं आपकी बिरादरी का हूँ। कैसे? इसमें चैप्टर नंबर 12 यही है, पर्यटक से आय कैसे बढ़ाई जाए। तो जो आप काम कर रहे हो एज ए डीएम मैंने किया। आप थियरी वाले हो, क्लास में कलम घिसते हो, मैंने फील्ड में कलम घिसा आपके नॉलेज पे। हमने एग्री टूरिज्म पे काम किया, जैसे मेडिकल टूरिज्म होता है, हमने एग्री टूरिज्म का प्रयोग किया। एक कालिंजर फोर्ट है बहुत फेमस, कहाँ? मादा में, बहुत फेमस है, उसको अजय किला कहते हैं। उसी के नीचे मैंने एग्रीकल्चर का एक इवेंट किया, पूरे देश से, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे बुंदेलखंड को बुलाया, बहुत बड़ा फंक्शन किया। 5-6 घंटे में 50-60 लाख का वो इवेंट था, बहुत फेमस था। लोगों ने क्या किया, वहाँ तो जो टीला है कोर्ट का, उसके नीचे बहुत बढ़िया फूटिल पे किया। 2 बजे तक आज पूरा फंक्शन हुआ, खाना वाना खाए, उसके बाद गए वहाँ, कहाँ? कोर्ट का दर्शन किए। तो एग्री और प्लस टूरिज्म, एग्री टूरिज्म का मैं प्रैक्टिकल प्रयोग कर चुका। तो मैं टूरिज्म का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, किताब लिख चुका हूँ, ये सबूत है मेरा। चैप्टर नंबर 12 है, पढ़िएगा कैसे मैंने छोटे छोटे चीजों से टूरिज्म को बढ़ाया। मैं बिना पैसे वाला धंधा करता हूँ। मेरा जो गवर्नेंस का मॉडल है वो ये है, नो कास्ट और लो कास्ट एक्शन एंड एक्टिविटी, जिससे कि आपको किसी चीज की दिक्कत ना हो और आप काम करिए। किताब पढ़िएगा, मुझे रिव्यू दीजिएगा। ऑनलाइन में ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह हूँ। और मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ, आप लोग मेरे चैम्बर में आइए, मैं आपको चाय पीऊँगा, आपका स्वागत करूँगा। और अगर मैं आपके किसी तरह से कोई काम आ सका, किसी तरह से कोई काम आ सका, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ
समाज के लिए किया। शुभकामनाएं, धन्य, थैंक यू।